Today we will start with this ocean current, some theory related to these things, and so this is the whole very important concept. ठीक है ना? Superbly important concept of this ocean currents. Okay, so we were in the about this oceanic gyres. Okay, we have discussed up to this much point. ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक डिस्कस किया था. Ocean currents we have just started, and we have talked about the superficial currents, and we have talked about five types, five major subtropical gyres. Okay, so यहाँ से start करते हैं. Okay, so ओशन गाइड्स के बारे में आपको इंट्रो मिल गया था. ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती हैं? दीज आर बिकॉज ऑफ वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज. तो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज that exist in both the hemisphere. We know. So the winds are going from here, winds are coming from here. So because of this, the eddies and the vortex type things are developed in the middle of the oceans. Okay, so these are the ocean gyres. So 5 such type of gyres have been identified between the oceans, and they are usually the center of these gyres usually lie within this 30-degree and 60-degree latitude. Okay, 30-degree and 60-degree latitude, that's why we call it the subtropical gyres. ठीक है, अगर आप इनका मोशन देखें, so you see that North Atlantic gyre is there. So it is which type of motion? It is a counterclockwise, na? You can see na each and everything. Yes, sir. Yes. Okay. It is a counterclockwise. While you have a clockwise. Oh, sorry. Counterclockwise this. ठीक है? You have a clockwise here and you have a counterclockwise. Sorry for the mistake. ठीक है? It is mentioned here. It is because of the easterlies that are coming from here and the westerlies that are coming from here. It is because that. So in the southern hemisphere, and these 5 types are being identified when it is in North Pacific, South Pacific, North Atlantic, South Atlantic, and you have this Indian one. Okay, that is also southern Indian, you can say. Because here it can also be developed, but because there are continents that are present here, it only develops in the southern hemisphere, and some part would lie above the equator, but majority of this thing would lie in the southern hemisphere only. And these are the other names: Columbus gyre, Navigator, Turtle, है ना? ये कुछ names हैं, ये आप that you can remember because sometimes they can ask, okay, what is the Columbus gyre? तो आपको बताना पड़ेगा इसमें से. तो ये आपके famous voyagers के basis पे आपके नाम रखे गए हैं. Okay, तो ये आप ध्यान रखेंगे. Okay, so now what are the components of a subtropical gyre that we will see? तो आपके components कौन-कौन से होते हैं? तो आप देखिए कि ये आपकी नॉर्थ पैसिफिक gyre है. तो इसमें आपके components होते हैं that you have one, it is not mentioned here, and equatorial currents. Don't see this. This is something else. Equatorial counter current is something else. Equatorial current is something else. तो equatorial current जो होते हैं आपके, ऐसा नेम सजेस्ट इक्वेटर पे ही होंगे, वो आपके होते हैं ईस्ट टू वेस्ट. वाइल आप इसमें केस देख सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ये आपके होते हैं. तो इनका ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये इनकी वजह से ड्रिवन रहता है. एज वेल एज यू हैव सम ईस्टर्न बाउंड्रीज एंड द वेस्टर्न बाउंड्रीज करंट. ठीक है, तो हम अगर बोले दीज आर द ईस्टर्न बाउंड्रीज एंड दीज आर द वेस्टर्न बाउंड्रीज, ये ओशन के रिस्पेक्ट में, कॉन्टिनेंट्स नहीं, ओशन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं. दिस इज द पैसिफिक,
तो पैसिफिक में आप देखिए, दिस इज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पैसिफिक एंड दिस इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पैसिफिक, है ना. यू हैव ऑस्ट्रेलिया, यू हैव जापान, यू हैव यूएसए, मेक्सिको, ऑल दिस द कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. सो दीज आर द कॉम्पोनेंट जिनकी वजह से ये आपकी ड्राइव होती है. ठीक है, तो पहला आपका होगा इक्वेटोरियल करंट्स. ठीक है, तो ये इधर से इधर ऐसे ऐसे थोड़े इस तरीके से आते हैं, तो ठीक है, यूजुअली दे फ्लो अलोंग द इक्वेटर ओनली. देन यू हैव द वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स. तो ये आपके वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द ओशन में होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये जैसे ही ये भी जाना चाहते हैं ऐसे, लेकिन नहीं जा पाते और फिर इस तरीके से अपना पाथ ले लेते हैं, बिकॉज देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स, and they now they move towards the poles. They take this type of trajectory and they move towards the poles. So the Coriolis effect also deflect these currents away from the equator as western boundary currents. ये बहुत important है. Now you have northern and southern boundary currents. ठीक है, ये नॉर्थ में आपके होते हैं, लाइक एक आपका एक सदर्न बाउंड्री करंट दिखाया गया है इसमें. वी कॉल इट एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट. पोलर करंट. ठीक है, तो आपका जो गायर का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये आपके नॉर्दर्न एंड सदर्न बाउंड्री करंट्स होंगे. तो ये वाला एक ब्रांच हो गई, एक ये वाली हो गई नीचे वाली, एक ये वाली हो गई. व्हाट आर दिस, कि पूरी गायर किसकी वजह से बनी है, तो ये आपके नॉर्दर्न एंड सदर्न बाउंड्री की वजह से बनी है. ये आपके नीचे वाली जो ब्रांच है या इधर वाली ये जो ब्रांच है ये आपके इक्वेटोरियल करंट्स की वजह से है. ठीक है ना, तो इसी वजह से आपको ये जानना है. ठीक है, नॉर्दर्न एंड सदर्न बाउंड्री करंट्स. ठीक है, एंड देन यू हैव द ईस्टर्न बाउंड्री करंट. ईस्टर्न बाउंड्री पता चल गया. तो क्या क्या कंपोनेंट है, यू हैव नॉर्दर्न बाउंड्री, यू हैव सदर्न बाउंड्री. ठीक है, यू हैव इक्वेटोरियल, नॉर्दर्न एंड सदर्न डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड्स. एक्चुअली इस केस में आपका नॉर्दर्न ही होगा, इस केस में आपका ये चीज सदर्न में होगी. तो अब जैसे आपका एक एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट ऐसे जाता है, दिस इज लाइक एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट. तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, दिस इज द एंटार्क्टिका, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द साउथ अमेरिका, एंड यू सी दिस इज द एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट. ये ऐसे मूव करता है, ये अंटार्कटिका को ऐसे सराउंड करता है इस तरीके से. ठीक है, तो ये इस टाइप का करंट हो गया, जिसकी वजह से आपकी जो गायर्स होंगी, जो मैं कहता हूं आपकी इस तरीके से गायर्स होंगी एंटी क्लॉकवाइज ना, इधर इधर कहीं होंगी. फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. तो ये वाला जो नीचे वाली जो आप देख सकते हैं ब्रांच जो गायर की है, ठीक है, वो आपकी इस सदर्न बाउंड्री करंट की वजह से ड्रिवन है. नेक्स्ट यू हैव दिस ईस्टर्न बाउंड्री करंट. ईस्टर्न बाउंड्री करंट का आपकी ईस्टर्न वाली ब्रांच होगी. तो ये कंपोनेंट्स होते हैं एक सब ट्रॉपिकल गायर के. ठीक है, वायर्स बहुत बड़ी होती हैं, ये लार्ज एरिया में होती हैं. इससे आपको आइडिया मिल गया होगा ये. और ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट. ठीक है, पहले क्या था, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं, ये सदर्न अमेरिका का पार्ट और ये वाला पार्ट जो है अंटार्कटिका का, ये जॉइंट था. But it is now opened. We call this the Drake passage. ठीक है ना, जिसकी वजह से इस तरीके के करंट एस्टेब्लिश हुए हैं. और ये बहुत हद तक रीजन है जहां जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड रहता है इन एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट्स की वजह से. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज का. देन यू हैव इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स, जो आप देख सकते थे इधर, जैसे इमेज में दिखाया हुआ था. क्या हुआ, यू हैव दिस इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स, ये आप देख सकते हैं. तो यहां आप देखिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स का जो डायरेक्शन है दैट इज समथिंग डिफरेंट. सो यू सी दैट दे आर फ्रॉम हेयर टू हेयर, दे आर फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, क्योंकि ये आपके क्या है, दीज आर अंडर करंट्स, दीज आर नॉट सरफेशियल करंट्स. ठीक है ना, दीज आर अंडर करंट्स. तो होता क्या है कि जो आपकी
वेस्टर्न बाउंड्रीज होती हैं बेसिन्स की, वहां पर पानी का पाइलअप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस इफेक्ट, है ना। आपके पानी जो है accumulate हो जाता है, the huge pile up of water that is accumulated on the western boundaries, and ultimately it will not pile up because it is a fluid for a longer time. It will driven off under the action of the gravity, and under the action of the gravity ये क्या होता है, ये आपका एक डाउनहिल यही बोला गया, अभी मैं बताऊंगा इसको, अभी आप और अच्छे से समझोगे आगे वाली स्लाइड्स में। ये आपका नीचे की तरफ फ्लो करता है और ये इस तरीके से आपके इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स डेवलप होते हैं, जो कि आपके अंडर वाटर मतलब लाइक अराउंड 100 से लेके 300 मीटर तक फ्लो करते हैं, ज्यादा डीप वाटर नहीं, 100 to 300 मीटर्स तक के उड़ते हैं। और इनका जो डायरेक्शन होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल, इधर से दिखाया गया है नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल रिस्पेक्ट में, आप देख सकते हैं देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट। Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो आप देखिए ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कहाँ है, पैसिफिक में भी और इंडियन में भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इंडियन तो अभी इसमें इस वाले मैप पे नहीं शो हो रहा है, और स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट जी जो होते हैं, काउंटर करंट आपके इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। आप देख सकते हैं पैसिफिक में तो है ही है, एंड अटलांटिक में भी है, लेकिन अटलांटिक में इतने ज्यादा नहीं होते जितने आपके पैसिफिक और इंडियन में होते हैं। ये these are the equatorial counter currents इनको बोला जाता है। Then you have subpolar gyres, ठीक है ना। सब पोलर हम लोग यूजुअली जो गायर्स होती हैं दैट आर सब ट्रॉपिकल ओनली, बट सब पोलर गायर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड योर नॉर्दर्न यूरोप एज वेल एज नियर एंटार्क्टिका, ठीक है ना। ये आपकी सब पोलर गायर्स होती हैं, इनका जो एक्सटेंट होता है बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटी होती है गायर्स। And some names are mentioned here if the question is being asked. One is the Viking gyre. So it is between this Greenland and Europe, and next is this Weddell Sea of Antarctica. यहाँ पर मैंने लिख दिया Weddell gyre लिखना था मुझे, sorry, ठीक है, that is mentioned here. This is the coast of Antarctica. There is some ice shelf here. This is the Weddell gyre, and very nearby. So you have this branch of land that you can see. It is the same here. This is the one. So this type of gyres are developed somewhere here in these localities. ठीक है, तो ये आपके कितनी होती हैं, आपके 60 to 70 80 डिग्री लेटीट्यूड तक की आपकी, आप समझिए इसकी बनती है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट। Okay, so you can see here it is mentioned in this diagram. You see the subpolar gyre that is somewhat developed here, that we are talking about. Weddell gyre, ये वाली gyre जो है यहाँ पर है, ठीक है। And you have this subpolar gyre one here, ठीक है। तो ये आपके नॉर्वे है, ठीक है ना, नॉर्वेजियन करंट है ये आपका, एंड यू हैव दिस ग्रीनलैंड करंट, एंड यू कैन सी दिस इज द सबपोलर गायर व्हिच इज द वाइकिंग गायर। आई होप यू गॉट दिस थिंग। दिस आर, अभी पूछ लिया जाए तो आपको बता पाओगे क्या, ओके दिस इज द वाइकिंग गायर, इज द सबपोलर गायर। ये दो प्रोमिनेंट गायर्स हैं आपकी, ये दो प्रोमिनेंट गायर्स हैं। इसके अलावा 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक, ठीक है ना, जस्ट हैव अ लुक इस डायग्राम पे, थोड़ा समय बताओ आप इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी को बोलते हैं थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, है ना, या ओशन कन्वेयर बेल्ट, यहां मैं लिख दे रहा हूं।
thermohaline circulation or ocean conveyor belt. ओके, सो आप देखिए एक चीज नोटिस करिए कि आपके कुछ करंट्स, सभी करंट्स ही हैं एक तरीके के, कुछ गायर्स हैं कुछ करंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं गायर्स हैं आपकी ये कुछ, ये 5 इंपॉर्टेंट गायर्स अपार्ट फ्रॉम दोज सब ट्रॉपिकल सब पोलर गायर्स, दीज आर सब ट्रॉपिकल गायर्स। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, करंट्स। कुछ करंट्स आपके क्या हैं, इक्वेटर पे हैं, कुछ करंट्स आपके हाई लैटिट्यूड्स पे भी हैं, ठीक है। कुछ करंट्स के जो डायरेक्शंस आप नोटिस करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप एक चीज नोटिस करिए, कलर क्या दिया हुआ है उनको, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कलर के बेसिस पे जो भी कलर रेडिश के वो आपके पोलवर्ड जा रहे हैं, और जो भी आपके ब्लूइश है, ठीक है, ब्लू कलर के जितने भी वो आपके इक्वेटर वर्ड जा रहे हैं, ठीक है। ये आप नोटिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप इतने सारे नाम है और नाम याद करने भी है, कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स के आपको नाम याद करने, ये हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर बार क्वेश्चन आता है इससे। जिसमें से आप ये देख सकते हैं, ये गल्फ स्ट्रीम, ये मैंने आपको दिखाया हुआ था, ये सिमिलरली यू कैन सी हियर this meandering eddies and all this, है ना, warm and cool pools are developed because of this thing. So these are this is the Gulf Stream actually. This is the coast of USA and this is the Gulf Stream that is going. It is one of the well-studied currents, Gulf Stream, because where it is lying, it is lying near to this very prosperous coast of USA. एंड मैंने आपको बताया ये जो आपके करंट्स होते हैं ये बहुत हद तक वहाँ के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करते हैं, या मैंने आपको कल बताया था। ओके, सो यू हैव दिस different currents in India. You can also see you have this Somali current, okay, and you have some north equatorial current, equatorial, तो काउंटर करंट आपके अलग डायरेक्शन में है, आप देखिए, है ना, एंड साउथ एंड नॉर्थ ये आपके सब आपके वार्म करंट्स हैं। कोल्ड करंट्स कौन से हैं, वाइशियो है, कैलिफोर्निया है, पेरू है, देन यू हैव दिस कैनरी करंट है, बेंगुएला है, लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, है ना, देन यू हैव दिस वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट here, very important, this is also very important, Labrador, Greenland, these are some of the cold currents. Antarctic circumpolar current is also a cold current. This is not actually a this is a मतलब पूरा एक ग्लोब का चक्कर लगाता है, ये किसी कॉन्टिनेंट को आप समझिए कि ऐसे फॉलो नहीं करता, ये पूरा ग्लोब का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसको ये रूट मिल गया है जिसको मैंने ड्रेक पैसेज बोला था, दिस ओशन, जिसकी वजह से ये पूरा आपका करंट आपका कंप्लीट होता है। सर जो इंडिया के पास जो गायर है वो जो वार्म करंट है वो इसका नाम क्या है? माजिद, इन इंडियन ओशन इज द माजिद गायर। ओके, सब ट्रॉपिकल, इंडियन ओशन सब ट्रॉपिकल गायर, ये फिर माजिद गायर, ये वाले, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर कि इसी मैंने बोला इसी को बोलते थर्मोहलाइन सर्कुलेशन और ओशन कन्वेयर। तो वाटर क्या होते हैं यहाँ पर, दे गेट वार्म, सो they usually go and because of this heating and Coriolis effect and all these factors, they move like this and eventually they get cold, like river, like wind only, ठीक है ना, they get cold
अब यहाँ पर क्या होगा, ये सलाइन भी है एक तो पहली बात, ऊपर से क्या होगा, सीधा समय के साथ साथ ये क्या हो जाएंगे, ठंडे भी हो जाएंगे जैसे जो ऊपर अप्रोच जाएंगे, ठीक है। और जब ये सलाइन है तो मोर डेंस है, ठंडे हो गए तो और डेंस हो गए, तो जब इसको बोला ना थर्मो हलाइन, तभी टेम्परेचर को यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दे गेट सिंक these localities, they will sink in these localities, ठीक है। तो ये आपके जितने भी रेड कलर्ड वाले हैं, ये आपके जैसे आपके हाई लैटिट्यूड्स पे जाते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके सिंक हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। वहीं आपके ये जो आपके ब्लूइश कलर्ड वाले हैं, जो आपके पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ये आपके जो सिंक किए हुए हैं वो धीमे धीमे आपके अपवेल होते हैं, तो ये अभी अंडर वाटर ही है, वो धीमे धीमे ऊपर आएंगे सरफेस पे। लेकिन ये जो वाले सरफेस वाले, ये धीमे धीमे जाके आपके एक जगह पे जाके जैसे कन्वर्जेंस होगा आपका, सिंक हो जाएंगे। और ये आपके जो कैनरी वाले हैं, ये धीमे धीमे आपके न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं, कोल्ड होते हैं और इक्वेटर पे आते हैं धीमे धीमे करके, ठीक है ना। कुछ फ्यू किलोमीटर्स में इनकी स्पीड होती है। तो सर जो अपवेलिंग होता है, सर जो अपवेलिंग होता है वो वार्म करंट में या कोल्ड करंट? कोल्ड वार्म में नहीं होता, जो इक्वेटर की तरफ आ रहा है ना उसमें वो अपवेल करेगा, और जो पोल की तरफ जा रहे हैं दे डाउनवेल, इनमें सिंकिंग होगी, इनमें आपकी ये असेंड करेंगे, ये राइज करेंगे। सर जो इक्वेटोरियल से पोल से इक्वेटोरियल से आते हैं तो गर्म हो जाता है, हाँ, देन अपवेलिंग कैसे होगा? अपवेलिंग तो गर्म ही होगा। तो धीमे धीमे तभी तो अपवेल कर रहे हैं, धीमे धीमे। अभी आपके क्या होंगे, गर्म होंगे तो राइज होंगे ना धीमे धीमे। यस, तो गर्म हुआ ना, ठीक है। बट वी कॉल इट, दोस आर cooled rich nutrient rich waters, they bring a lot of nutrients actually। आपके अपवेलिंग की वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डीप ओशन से ऊपर सरफेस की तरफ आते हैं, जिनमें आपका इन करेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। लेकिन आपके ये जो होते हैं, ये आपके वापस, तो एक तरीके कन्वेयर बेल्ट जनरेट हो रही है, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, गैसेस के एसेंशियल गैसेस की सप्लाई थ्रू आउट द ओशन डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ करंट्स होते हैं और ज्यादा नीचे जाते हैं, जैसे हम डीप करंट्स बोलते हैं। अभी हम सरफेस की बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर सरफेस, अब सरफेस मतलब सरफेस नहीं लीजिए, 200-300 मीटर तक ले सकते हैं, जैसे कि इसमें काउंटर करंट्स भी मेंशन किए गए हैं, लेकिन वो सरफेस पे नहीं होते, वो 200-300 मीटर नीचे तक जाते हैं। वो बॉटम और डीप करंट्स होते हैं जो कुछ हजार मीटर पे होते हैं, उसको हम कल बताएंगे, ठीक है। वो ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ भी कहीं सिंकिंग हो रही है नीचे सदर्न पार्ट्स में, वहां भी हो रही है, तो इसी को थर्मोहलाइन सर्कुलेशन बोला जाता है। चीजें गर्म हुई है ना, पोल की तरफ मूव कर रही हैं और वहां जाके सिंक हो रही हैं, वो सिंकिंग वाला पानी धीमे धीमे करके आपका इक्वेटर की तरफ आपके आके है ना अपवेल कर रहा है। और डाउनवेलिंग अपवेलिंग कहाँ हो रही है, इन जोन्स में, ये जोन्स में अपवेलिंग हो रही है। डाउनवेलिंग कहाँ हो रही है, इन जोन्स में। कुछ अलग पेन का यूज कर लो, ठीक है। इसी वजह से इसे बोलते हैं ओशन कन्वेयर बेल्ट या थर्मोअलाइन सर्कुलेशन। तो एक पूरी कन्वेयर बेल्ट, ऐसे ही आपके हर एक जगह पे, हर एक ओशन में इस तरीके की कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं। और एक का मेन क्या है, थर्मोअलाइन, टेम्परेचर और सैलिनिटी मेन चीज है, जिसकी वजह से सिंकिंग होगी और जिसकी वजह से आपकी असेंडिंग होगी, ठीक है सर। एक बार डाउनवेलिंग अपवेलिंग थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये वाला मैं इसमें समझा रहा हूँ, अभी रुक जाइए, आने वाली स्लाइड्स में अभी इसी का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये कुछ नाम्स हैं, इनको आप नाम से याद कर लीजिएगा। नाम्स बहुत इजी है याद करना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अब ये जो कंपोनेंट्स मैंने बताया था आपको, ये जो कंपोनेंट्स हैं ग्लाइड्स के, ठीक है,
ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखिए, नॉर्थ पैसिफिक वाले को, पहले नॉर्थ अटलांटिक वाले को देखते थे, कोलंबस वाले को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये क्या, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है ना, जो कि आपका वेस्टर्न बाउंड्री वाला, ये आपका क्या है, कैनरी आइलैंड्स के पास है। गल्फ स्ट्रीम मेरे हो सकता है ये आपका, एक तो पहली बार स्ट्रीम की तरह होते हैं ये, बिल्कुल है ना, एक बहुत आप समझिए कि गंगा से 50x टाइम्स, 50x और 60x टाइम्स बड़ी एक रिवर फ्लो कर रही है। इस तरीके के करंट्स होते हैं आपके, ये अलग से दिखते हैं ये, ठीक है, जैसे हमने आपको कल दिखाया। कैनरी, क्योंकि कैनरी आइलैंड के पास है, गल्फ स्ट्रीम क्योंकि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास है। तो इस तरीके से नाम दिए गए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राजील, बेंगुएला, ये आपके अंगोला में एक प्रोविंस है आपका, फ्लोरिडा, लेब्राडोर आपके कनाडा में है, फाल्कलैंड, ठीक है ना, ये आपके आइलैंड्स हैं आपके साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास। फिर आपके सोमाली, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ल्यूविन, वाइशियो नाम है, जैसे जापानीज नेम है, अलास्कन, ये पता है अलास्का, परू एक कंट्री है। तो इस तरीके से नाम दिए हुए हैं, स्टिल, क्रोशियो, कैलिफोर्निया। तो आपके जितने भी नाम्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे रैंडमली नहीं दिए गए, उनके पीछे भी एक लॉजिक है, ठीक है, उनके पीछे भी एक लॉजिक है। तो इसकी वजह से अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा आइडिया, तो नाम याद करने में आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि कौन कौन से आपके हैं इसमें से, मैं ब्लू कलर से मेंशन कर रहा हूँ। यू हैव कैनरी, यू हैव कैलिफोर्निया, यू हैव दिस परू, ये ब्लू कलर वाले हैं ये, ठीक है ना। यू हैव दिस बेंगुला, यू हैव दिस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ओके। इसके अलावा जो भी हैं आपके, वो सब आपके मेनली मेरे हिसाब से लैब्राडोर भी, ठीक है। तो ये कुछ मेन है, कुछ इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, हर बार आता है ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नाम से पूछते हैं, कौन सा आपका वार्म है, कौन सा कोल्ड है, ये पूछते हैं क्वेश्चन। और भी डिफरेंसेस हैं इन दोनों करंट्स के बीच में, कि आपके वार्म और कोल्ड के अलावा भी, जैसे कैनरी और वर्सेस अगर मैं गल्फ स्ट्रीम करूं तो और भी डिफरेंसेस होता है। ये नहीं कि सिर्फ ये वार्म और कोल्ड है ना, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड है या न्यूट्रिएंट्स एनरिच्ड हैं, ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री पे है, वेस्टर्न बाउंड्री पे है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, इस पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एकमैन स्पाइरल का, क्योंकि ये बात की जो चीजें हैं सब इस पे ही डिटरमाइंड है। तो एकमैन स्पाइरल या ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, एंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हम लोग ने कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में पढ़ ली, तभी इसी वजह से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप देख रहे हैं ओशंस कितना इफेक्टेड है इसकी वजह से। तो आपका जैसे कि विंड फ्लो करती है इस डायरेक्शन में, आप देखिए, ठीक है, इफ द विंड ब्लोज लाइक दिस, ठीक है, तो विंड का डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे, जो सरफेस पे जो करंट्स होते हैं, जो होंगे, वो इस तरीके से मूव करेंगे। कलर दूसरा ले लें, ब्लू हो रहा है, वो इस तरीके से मूव करेंगे, दैट इट विल अराउंड 45 डिग्रीज, ठीक है ना, फ्रॉम द मेन विंड डायरेक्शन, जो आपके सरफेस पे होंगे। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, ये अपना जो डायरेक्शन को शिफ्ट करते जाएंगे मोर टुवर्ड्स द राइट, बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, आपका कोरियोलिस इफेक्ट भी आपके इंटेंसिफाई होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये और ज्यादा राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। एक समय ऐसा आ जाएगा जब सबसे डेप्थ में, जबकि सबसे ज्यादा डेप्थ नहीं है, इट इज स्टिल अराउंड 100 मीटर, उसके नीचे आपकी विंड्स इफेक्ट नहीं करती। विंड्स का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका शुरू के 50-60 मीटर तक ही आता है। कहाँ तक विंड इफेक्ट करेंगे भाई, विंड के अंदर कितनी ही कैपेबिलिटी होती है कि वो पानी को डीप ओशन में, आपके जो डीप जो वाटर मूवमेंट रहता है, वो या तो सुनामी के केस में रहता है ना, या तो आपकी ये बॉटम वाटर्स और डीप वाटर करंट्स होते हैं। ये वेव्स का भी इफेक्ट नहीं करती, इतनी बड़ी कोई वेव नहीं होती है आपको,
कि पूरे फुल ओशन में आपकी आ रही है। अगर फुल ओशन में वेव आ रही, जस्ट इमेजिन क्या होगा। सुनामी आती है तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका एक बहुत ही स्मॉलर सा एग्जाम्पल है। तो आपका ये जो आपका जो वाटर का जो फ्लो रहेगा वो आपका विंड की डायरेक्शन में रहता है, बल्कि थोड़ा ऑफसेट रहता है। लाइक सरफेस पे रहेंगे 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, देन धीमे धीमे करते इट इज अराउंड 180 डिग्री, सबसे डीपेस्ट पार्ट में जहां तक विंड आपका इन्फ्लुएंस कर सकती है। 2D में आप देख सकते हैं इस चीज को इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? जैसे आप एक तो पहली बात राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की, और आपका फ्रिक्शन भी एक रोल प्ले करता है इसमें। फ्रिक्शनल फोर्सेस भी जैसे हम जाएंगे सिंपल सी बातें पड़ती रहती हैं, तो इसी वजह से ये तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से शो किया गया। ठीक है, जो नेट ट्रांसपोर्ट होता है, नेट ट्रांसपोर्ट ये होता है अगर टोटल देखा जाए, ठीक है ना, टोटल अगर सबका निकाल के मैग्नेट एक प्रॉपर डायरेक्शन निकाला जाए, मेन डायरेक्शन निकाला जाए, ठीक है ना, सभी फ्लोस का, तो इट इज अराउंड 90 डिग्री फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, विच मीन्स दिस वन। ठीक है, विच मीन्स दिस वन। तो दिस इज नोन एज द एक्वन ट्रांसपोर्ट। तो आप इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया, देखिए विंड और कैसे शिफ्ट कर रहा है, एंड दिस इज द नेट फ्लो that I'm talking about, which is just 90 degree from the wind direction। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एकमन ट्रांसपोर्ट, और ये एकमन स्पाइरल इस तरीके का स्पाइरल डेवलप होता है। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, each successive layer of water is set in motion at a progressively slower velocity and in a direction progressively to the right of the one above it। At some depth, a layer of water may move in a direction exactly opposite from the wind direction that initiated it. The total net movement is 90 degrees from the direction of the wind. This average movement is known as the Ekman transport. 90 degrees to the right to the northern hemisphere and 90 degrees to the left in the southern hemisphere. Obviously उल्टा रहेगा southern hemisphere। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस इसको ध्यान रखना ना, यही सब थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेना इसको, बाद में जाके सब समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ कम्स द जियोस्ट्रॉफिक फ्लो, जो कि अल्टीमेटली यही सब चीजें हैं, इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट है। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूं। ओके, एनी क्वेश्चंस बाय द वे? No, sir. Okay, these are very simple things. I think you are able to understand each and everything. So okay, so now this is the geostrophic। geostrophic flow अभी आप विंड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है जियोस्ट्रॉफिक फ्लो? ये वो फ्लो होते हैं जो आपके बनते हैं जब आपका कोरियोलिस इफेक्ट और ग्रेविटी में बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो इन जियोस्ट्रॉफिक फ्लोज की वजह से ही आपके जो आपकी गाइड्स होती हैं, गाइड्स के सेंटर में एक तरीके का आपका कन्वर्जेंस होता है वाटर का डिफरेंट डायरेक्शन से। ठीक है, तो जब आपका कन्वर्जेंस होता है दैट विल डेवलप लाइक अ हिल, दैट विल डेवलप लाइक अ हिल। तो आप देख सकते हैं ये आपके एक तरीके का हिल डेवलप हुआ है। But hill is not symmetric, it is asymmetric, that these sides are more steeper than these sides। Okay, you can just imagine that these are the contours। Okay, these sides are more steeper, the western side is more steeper than the eastern side, as you can see। आपके जैसे वाटर आ रहा है इस तरीके से और ये इस तरीके से जा रहा है। Okay, this contour denotes the path of the geostrophic flow। ठीक है ना, और किसकी वजह से? आपका कोरियोलिस इफेक्ट आपका एक तरीके वॉर्टेक्स क्रिएट कर रहा है, वही ग्रेविटी इस हिल को बनने से रोक रही है।
दैट्स व्हाई देयर इज अ बैलेंस बिटवीन देम इज। ये आपकी विंड में भी आएगा, आप पढ़ेंगे जियोस्टॉपिक विंड्स पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज आती है, वो भी आपका यही होता है, सेम कोरियोलिस इफेक्ट और ग्रेविटी में एक तरीके का बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप इक्वेटर वर्ड मूव करते हैं, ठीक है, तो आपकी ये ट्रेड्स हैं, ट्रेड विंड है जो कि अल्टीमेटली ड्राइव कर रही हैं इनको, तो ये बहुत वीक होती है, यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट वीक होता है, जिसकी वजह से पानी इतना अच्छे से टर्न नहीं ले पाता जितना अच्छे से टर्न वो हाई लैटिट्यूड्स पे लेता है इन द केस ऑफ वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज उनको अच्छे से एक बेंड ला पाती हैं, बहुत शार्प बेंड लाती हैं, जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। तो जो टर्निंग होती है ना, वो ज्यादा इंटेंस होती है इन जगहों पे। ओके, comparatively to this, so it is written as wide and weak flow to south and narrow and strong flow to north. Wide और weak flow नॉर्थ की तरफ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वाइड एंड वीक फ्लो साउथ की तरफ, और कॉन्ट्ररी नॉर्थ एंड स्ट्रॉन्ग फ्लो नॉर्थ की तरफ। क्योंकि जैसे जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम पोलवर्ड्स मूव करते हैं आपका कोरियोलिस इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ही ये इस तरीके की आपकी डिस्पैरिटी जनरेट होती है। आपकी कुछ साइड्स, आपकी कुछ जो आपकी स्लोप्स हैं, वो स्लोप्स आके मोर स्टीपर होंगे, स्पेशली जो आपकी वेस्ट साइड के जो स्लोप्स हैं, जो ईस्ट साइड के स्लोप्स हैं, वो आपके मोर जेंटलर होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के गाइड्स में ये चीज देखी जाती है। तो लगभग ये जो हिल्स डेवलप होते हैं कुछ मीटर्स तक के डेवलप हो पाते हैं, 3-4 मीटर्स तक के, ज्यादा नहीं। आपका वाटर का एक पाइल अप होता रहता है। सर मोर द स्पीड मोर द कोरियोलिस? नहीं, लैटिट्यूड पर डिपेंड करेगी ना वो तो सर इसमें जैसे कि लेफ्ट वाला वेस्टर्न, अगर कोई करंट मूव कर रही है टुवर्ड द नॉर्थ तो स्पीड मोर है, तो उसकी वजह से कोरियोलिस इफेक्ट ज्यादा हुआ है, नैरो एंड मोर स्ट्रांग फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ। Okay, so sir, as you tell that Coriolis and gravity force balance to each other, in which Coriolis is exceeding, so for this the hill is build up. So this Coriolis effect in the western side is greater in according to eastern side. See. It is not western or eastern. It is not a matter of where the western is flowing towards the poles ना। वेस्टर्न वाले जो करंट होते हैं आपके, वो पोल्स की तरफ जाते हैं, ईस्टर्न वाले पोल्स किसकी तरफ, इक्वेटर की तरफ आते हैं। तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ मूव करोगे आपका कोरियोलिस इफेक्ट भी तो इंक्रीज होगा। यस सर, इसकी वजह से होता है ये। इट इज नॉट अ वेस्ट और ईस्ट। अगर ईस्ट वाला भी अगर कोरियोलिस, अगर ऐसे पॉसिबल नहीं है, वैसे मैं कहता हूँ ईस्ट वाला भी अगर पोल की तरफ जा रहा होता तो ईस्ट की तरफ भी इंटेंसिफिकेशन देखने को मिलता है। सर टॉप व्यू कैसा होगा सर इसका? ये देखिए, मुझे पता था, नहीं समझ पाया। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द गैरिसन में ये वाला डायग्राम बहुत अच्छा दिया है। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द टोजियो, दिस आई गेट टेकन फ्रॉम द गैरिसन। आप देखिए विदाउट कोरियोलिस फोर्स ये है, एंड बाद में क्या है, विद कोरियोलिस फोर्स इट लुक्स लाइक दिस। यस सर, अब समझ में आ गया सर, थैंक यू। है ना। तो ये अब आप देखिए ना कंटूर्स क्या होते हैं, जब आपकी जैसे कंटूर्स आपकी पास आएंगी तो ये आपकी फ्लो लाइंस दिखाई गई एक तरीके से। वो दिखाने तो उनको एक 3D फिगर में चाहिए, लेकिन उनको कंप्रेस कर दिया एक 2D में कि वो जियोस्टॉपिक फ्लो को आप समझ सके अच्छे से। और इसी वजह से आप देख सकते हैं ये आपका सारगासो सी है, जो आपका फेमस बर्मुडा ट्रायंगल है जिसमें, ठीक है। तो ये आपका कोस्ट है समझ लीजिए यूएसए का, ये आपका कोस्ट है समझ लीजिए यूके का, एंड यू हैव दिस गल्फ स्ट्रीम, ठीक है ना। तो गल्फ स्ट्रीम आपकी किधर से फ्लो कर रही है, इधर से। तो मैंने बोला बिकॉज ऑफ दिस द वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स आर मोर नैरोअर एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। नैरोअर आप समझिए, जैसे नैरोअर होगी इट फॉलोज द बर्नौलीज प्रिंसिपल ओनली। पाइप है, पाइप के आगे उंगली लगा दो,
फ्लो तेज करेगा, है ना। तो और वेदर ऑन दिस साइड कैनरी क्या है आपका, वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड है, ठीक है ना, और डीप भी नहीं है ज्यादा और वीक बहुत है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी, दिस इज वन फ्यू मोर डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्टर्न बाउंड्री एंड द ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो इसको बोला जाता है वेस्टवर्ड इंटेंसिफिकेशन, इसको बोला जाता है वेस्टवर्ड, जो आप लोग ने चीज पढ़ी, दिस इज नोन एज द वेस्टवर्ड इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। तो आपका जियोस्ट्रॉफिक फ्लो है, तो जियोस्ट्रॉफिक फ्लो इस तरफ तेज होगा, उस तरफ धीमा होगा। तो आप पढ़ सकते हैं द एपेक्स या फिर टॉप ऑफ द हिल फॉर्म विद अ रोटेटिंग गायर इज क्लोजर टू द वेस्टर्न बाउंड्री देन द सेंटर ऑफ द गायर। आप देख सेंटर इसका इधर से पास है rather than, है ना। तो ये रीजंस आपको पहले मिल गए थे इसके। द वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स ऑफ द आर फास्टर, नैरोअर, डीपर देन देयर ईस्टर्न बाउंड्री करंट काउंटरपार्ट्स, okay, that are more broader, shallower, cold and weak, that is mentioned here. The differences are mentioned here very well, you can see that this is the top of the hill that is mentioned here, ये कहीं होगा, तो आप इस तरीके से आपके इमेजिन कर सकते हैं। तो एग्जांपल दिया हुआ जैसे कि this is the Kuroshio current which is 15 times faster and 5 times deeper than the California current, सेम काउंटर पार्ट्स है, ठीक है ना। 15 टाइम्स मोर फास्टर है और 5 टाइम्स डीपर है, डीपर लिखना चाहिए था वहां पर, देन द कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नाउ okay, you see more diagrams related to this. So this is the center of the hill somewhere here, ठीक है ना। तो आप देखिए ना टोटल ओशन कितना बड़ा है, ठीक है। इधर से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए इन जगहों के नीचे आपका क्या हो रहा है, ये आपकी जो पिक्नोक्लाइन है वो भी आपकी डिप्रेस कर रही है। There is a depression in the pycnocline that we will observe. That is actually happening. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। So this is the hill center and the pycnocline usually depresses. Okay, so same things, you can go through it. Similarly, your thermocline is also pushed deeper, ठीक है ना, because in this hill, it is not actual hill, it is a pile up of water. This is some sinking of water that takes place in the center, ठीक है ना। This is because thermocline is pushed deeper. Okay, so there's a difference, this is mentioned here, ठीक है। So you have वेस्टर्न बाउंड्री करंट, you have ईस्टर्न बाउंड्री करंट। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए थे, width narrower we know, more wider we know, depth deep, depth shallow, speed fast 100 of kilometer per day, tens of kilometer per day, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स, ठीक है ना। तो इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं SVERDRUP, सर्व ड्रॉप, इसको ऐसे लिखा जाता है SV से। दिस मीन्स 1 मिलियन, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखता, 1 into 10 to the power 6 cubic meter, this much per second, इतना इज इक्वल टू 1 सर्टेक होता है। स्वर ड्रॉप क्या बोलेंगे इसको, स्वर ड्रॉप, ठीक है ना। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता क्या है।
तो इसका कितनी वैल्यू होती है 10 to the power 6 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये तो आप इमेजिन आप कर सकते हैं, इनटू अगर 100 लगा दिया यहाँ पर, इनटू अगर 10 to 15 लगा दिया यहाँ पर, इन द केस ऑफ दिस you can just imagine the size of these currents. Okay, large as 100 SV. It is very much, yeah, it is very much per second, this much amount of water is carrying. It is more than this is a fact that is mentioned in the book. It is like the amount of water that is carried by this Gulf Stream is 100 times more than the water carried by the all rivers at a particular time. 100 times जितनी अर्थ पे रिवर है उस पे 100 टाइम्स ज्यादा से इतना वो कैरी करती है। ठीक है, कमेंट्स, water derived from low latitudes and are warm, little or no upwelling. Water derived from middle latitudes and are cool, coastal upwelling. These are the differences that you should look for. ठीक है, मैंने बता दिया। Then you have surface currents and climate. ये मैंने आपको बताया था कि ocean surface current directly influence the climate of adjoining land masses. तो आपकी जो western boundary currents होंगे, they carry warm, moist air, travels over a continent. ठीक है ना, it releases water vapor in the form of strong precipitation, जिसकी वजह से वहां पर सीधा सी ग्रीनरी दिखेगी आपको। ये चीज दिखती है, साफ साफ दिखती है आपकी ग्लोबल मैप। कन्वर्सली आप देखिए ईस्टर्न बाउंड्री करंट में सिचुएशन आपकी उल्टी होगी, ये कूल होते हैं, ठीक है ना, ड्राई, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट कर भी नहीं करते, जिसकी वजह से ये लिटिल प्रेसिपिटेशन आते हैं। तो ये जगह होती है मोर ऑफ एरिड टाइप होती है। ठीक है, और ये किसकी बात कर रही है, वेस्टर्न बाउंड्री मींस ओशन के रिस्पेक्टिव में, जिसकी वजह से आपका, इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, वेस्टर्न कोस्ट इफेक्ट होता है, इसकी वजह से आपके ईस्टर्न कोस्ट इफेक्ट होता है। तो कंफ्यूज ना होना, पेपर में कोस्ट वाइज भी पूछा जा सकता है। वेस्टर्न बाउंड्री की वजह से ईस्टर्न कोस्ट इफेक्ट होंगे कॉन्टिनेंट्स के, ईस्टर्न की वजह से वेस्टर्न कोस्ट इफेक्ट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप हमेशा यूएसए वाला जो एग्जाम्पल है आप हमेशा ध्यान रखिए, उसको आप इजी होगा याद करने में। ठीक है, you see okay, the temperatures are shown here, and you see that the maximum temperature is around 28-30 maximum. I told you about this maximum 32 से ऊपर नहीं गया अभी तक, 28-29 मैक्सिमम यूजुअल देखिए, वो तो एक अलग ही केस हो गया। फिर आपका ये 0 to 5 डिग्रीज, तो आपका क्या हो रहा है, ये आप देखिए, ये जो 28 डिग्री वाला जो जोन है, मोर देन 28 डिग्री वाला, ये थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, ये वाला जो है इस तरफ शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ पैसिफिक में। यही चीज आप अटलांटिक में भी देख सकते हैं। ये इन करंट्स की वजह से होता है, इन करंट्स की वजह से होता है कि वो जो हाई टेम्परेचर वाली जो बेल्ट है उसको और ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं हाई लैटिट्यूड पे, और जो लो टेम्परेचर वाली जो बेल्ट है जो 20 to 25 डिग्री वाली है, लो टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है कैनेडिक करंट की वजह से। तो ये जो करंट शो किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट्स है। परू, कैलिफोर्निया, तुम्हारा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, बेंगोला, अगलहास, ये सब इसमें मेंशन्ड है। ब्राजील, जिन करंट्स में मेंशन है उनके नाम मैंने लिए हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट करंट्स हैं आपको बताऊं। यही मेन करंट्स है, इसके अलावा और जो लैब्राडोर, ग्रीनलैंड और तमाम तरीके के सब सेकेंडरी वाले, ये मेन वाले हैं। तो इनके पहले आप नाम रखिए, सोमाली भी है, ऐसे तो बहुत सारे हो गए, इनको आप नाम रखिए। क्रोशियो, ठीक है ना, वेस्टर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाला, आपका कैलिफोर्निया वाला, आपका परू वाला, आपका गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राजील हो गया, कैनरी हो गया, बेंगोला हो गया, अगुलहास हो गया, ये ठीक है। ओके, नाउ अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग कैसे होती है। तो अपवेलिंग क्या है भाई, कोई नीचे से कोई चीज ऊपर आई उसे अपवेलिंग बोलते हैं, ऊपर से कोई नीचे चीज गई उसे डाउनवेलिंग बोलते हैं। अपवेलिंग हम लोग मेंटल अपवेल बात करते हैं,
मेंटल की अपवेलिंग होती है, तो वैसे ही आपकी इसमें भी आपको अपवेलिंग होती है। तो आपकी अपवेलिंग में क्या होता है, अपवेलिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी होती है, बेनिफिशियल हमारी दोनों ही होती है एक हद तक, ठीक है ना। ज्यादा बेनिफिशियल अगर कंपैरेटिवली बोला जाए तो अपवेलिंग ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इसलिए बेनिफिशियल होती है, दैट इज सो बिकॉज वो आपका कोल्ड डीप न्यूट्रिएंट रिच वाटर लेके आती है। क्या न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही है डीप ओशन से? Nutrients are phosphorus, nutrients are nitrogen, nutrient potassium, these है ना, that are required by the autotrophs to make their food, and obviously sunlight they need. So they are limited to the shallow oceans, the planktonics. These nutrients, sunlight, इन लोगों को मिल गया, so they can own their own food, and they are the food for other people. Because these are the primary producers, you have secondary, you have tertiary, the whole food web is there, pyramid is there, so the organisms that lie after them are dependent on them, okay? Because those are the primary producers, they act as a base in the food pyramid, and they are not so इसी वजह से आपकी अपवेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से आपकी फिशेस बहुत, और आपके जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हैं, है ना, जो क्रीचर्स हैं, अगर ये नहीं होंगे तो वो किस पे सरवाइव करेंगे? स्मॉल फिशेस, उसके बाद लार्ज फिशेस और लार्ज फिशेस किस पे सर्वाइव करेंगे? इन्हीं पे सर्वाइव करते हैं। ह्यूमंस किस पे सर्वाइव करते हैं? हम लोग सी फूड खाते हैं इस पे। तो इसी वजह से आपकी अपवेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन वेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डाउन वेलिंग क्या करती है, आपके कुछ ऑक्सीजन और कुछ जो नेसेसरी गैसेस होती हैं वो नीचे की तरफ जाती है डीप ओशन में। डीप ओशन में आपको पता है कि इस तरीके का होल, जैसे बोलते हैं कन्वेक्शन होता है आपका एस्थेनोस्फेयर में, उस तरीके का कन्वेक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करता होल ओशन में। होता है मिक्स्ड लेयर में होता है, लेकिन होल ओशन में नहीं होता। तो यही कुछ अपवेलिंग डाउनवेलिंग है जिसकी वजह से गैसेस के एक्सचेंज देखने को मिलते हैं हमें डीप और शैलो ओशंस में। ओके, डीप और शैलो ओशंस में। तो आपका यही आपकी चीज लिखी हुई है यहाँ पर इसी वाले स्लाइड में कि अपवेलिंग कैसे हेल्पफुल होती है, आपकी डाउनवेलिंग कैसे हेल्पफुल होती है। और डाउनवेलिंग कहाँ होती है, मैंने आपको बताया डाउनवेलिंग होती है आपकी पोलर रीजन्स में, हाई लैटिट्यूड्स में, और अपवेलिंग आपकी इक्वेटोरियल जोन्स में होती है, एज वेल एज कोस्टल जोन्स में भी होती है, और कुछ अलग केसेस भी होते हैं, वो भी हम आप देखते हैं। तो पहला आप देखिए कैसे हो रही है अपवेलिंग एक तरीके के एग्जांपल्स में। यू आर आस्किंग ना दिस थिंग, एक मिनट दे रहा हूं, इसको देखो जरा, एक बार देखो। ठीक है, तो पहली बात तो आपका किसकी वजह से होता है, एक्मन ट्रांसपोर्ट की वजह से, इसको हम कोस्टल अपवेलिंग बोलते हैं। मैंने एग्जांपल दिए हैं कुछ, सॉरी। तो पहले हम एक्मन ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या है, आपका विंड का डायरेक्शन क्या है, ये ठीक है। विंड का क्या डायरेक्शन है, सॉरी विंड का डायरेक्शन आपका है लगभग ये, ओके। और इसी की वजह से थोड़ा सा और इससे 45 डिग्री, जो कि आपको इसमें समझ नहीं आ आपके विंड्स ऐसे भी फ्लो कर सकती हैं। ये आपका इस तरीके का डाइवर्जेंस होता है इक्वेटोरियल रीजन से, थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट करके, ठीक है। तो आपका ये चीज कोस्टल एरिया, क्योंकि कोस्टल एरिया, सॉरी कोस्टल कह रहे हैं, ये इक्वेटोरियल रीजन्स क्या होते हैं, कन्वर्जेंस जोन्स होते हैं रिवर, उसके लिए, किसके लिए, विंड के लिए। तो हम लोग बोला था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, विंड आई तो उसने क्या किया, वहां की जो वाटर है उसको शिफ्ट किया, जो ऊपर वाला शैलो वाटर है उसको शिफ्ट किया अपनी जगह से। शिफ्ट करने की वजह से क्या होगा, स्पेस मिली और नीचे वाले वाटर ने उसको ऑक्यूपाई करी, जिसकी वजह से आपकी अपवेलिंग हो रही है। यू कैन सी हाउ द अपवेलिंग इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस, ठीक है। तो आपकी ये साउथ ईस्ट और आपके यही सेम आपके नदर हेमिस्फीयर, तो इसकी वजह से आपका साउथ ईस्ट
आपकी ये नीचे की तरफ से आ रही हैं, और नॉर्थ ईस्ट में आपकी इधर से आ रही होंगी कहीं, ठीक है, इसकी वजह से ये चीज होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल अपवेलिंग, इक्वेटर पे होती है, इक्वेटोरियल जोन्स में होती है, मीन इट इज बीइंग लिमिटेड अप टू, you see that this is the 5 degree north latitude, and for example 5 degrees, so it is limited to that particular latitudinal range. Okay, so you have this meteorological equator. It is why this term is used, because it is referring to this ITCZ only. ITCZ or Doll terms is also known as meteorological equator, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजिस्ट के लिए ये वाला इक्वेटर ज्यादा बनेगा, और ये शिफ्ट करता है, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट शिफ्ट इट्स पोजीशन थ्रू आउट द ईयर, वो बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो आपका क्या है, बिकॉज ऑफ, ये आप रीड कर लीजिएगा अपना। डाउन वेलिंग में क्या है, डाउन वेलिंग कहाँ होती है, आपके सब करंट्स आए वार्म वाले एक जगह पे मिले और ठंडे थे, सलाइन थे, जिसकी वजह से ये अब डाउन वेल कर गए। तो ये बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जेंस दैट टेक्स प्लेस एट द हाई लैटिट्यूड्स, सब जगह से आया पानी जो इकट्ठा हुआ, उसकी वजह से आपका ये डाउन वेल। तो यहाँ पर आपकी मरीन लाइफ बहुत अच्छी है। ये जोन जो होते हैं ये मरीन लाइफ के लिए इतने अच्छे नहीं होते, यहाँ पर आपको इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तभी सिलेबस में आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी दिया गया है, जो कि जिसमें आप ये सब चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उसी का इंट्रोडक्शन होगा, फिर बाद में थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स यूज होंगे, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं ये आप देख सकते हैं, इसके ये वाला आप देखिए, ये आपका क्या किया गया है, ये देख रहे हैं, ये जोन्स आपके अपवेलिंग को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जोन्स आपके इक्वेटोरियल जोन्स दिखाए गए हैं, जिसमें आपके ये अपवेलिंग शो हुई है। वहीं आपके ये जो जोन्स आप देख सकते हैं यूएस कोस्ट के किनारे, यूएस कोस्ट नहीं है, सॉरी, ये आपका पेरू का कोस्ट है, ठीक है, साउथ अमेरिका का कोस्ट है ये। इसमें आप देख सकते हैं क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन शो किया गया, इट इज मेंशन्ड हियर क्लोरोफिल कंसंट्रेशन, सो मोर ब्राइट टोन्स या रेडिश टोन्स, ऑरेंजिश टोन्स, आपका ज्यादा कंसंट्रेशन जब अपवेलिंग हो रही। तो एक अपवेलिंग आप इक्वेटोरियल में होती है, एक अपवेलिंग आपकी कोस्टल एरियाज में होती है। कैसे होती है वो आप देखते हैं। अब आप देखिए कि ये हम बात कर रहे हैं अभी इस केस में, you have northern hemisphere and you have northern hemisphere, both northern hemisphere are there। तो यहाँ से एक विंड आ रही है, ये आपकी फॉर एग्जांपल एक आइलैंड, मैं समझता हूँ ये एक आइलैंड है एग्जांपल, है ना, ये आइलैंड। विंड ब्लोज आइदर फ्रॉम हियर आइदर फ्रॉम हियर, ठीक है। तो जब आइलैंड के वेस्ट कोस्ट से, ये वाला जो कोस्ट है, ठीक है, ये वाला जो कोस्ट है, इससे अगर विंड, तो विंड क्या होगा आपका, अब देखिए वो आपकी उसको हटाएगी आपके, ये भी आपका एक कोरिलेस इफेक्ट का ही केस है, ठीक है ना। और ये चीज क्या करेंगी, मूव करेंगे। नेट ट्रांसफर किधर होता है, 90 डिग्री का हमें पता है, इस तरीके से इस तरफ होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, याद रखिए राइट हैंड साइड मींस अगर ये रिवर कह रही है, हवा इधर से आ रही है, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, एक्मन फ्लो होगा, एक्मन ट्रांसपोर्ट होगा, 90 डिग्री पे होता है, जिसकी वजह से पानी मूव हुआ और बाद में जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो ऊपर आया इस तरीके से धीमे धीमे, और यहाँ पर बढ़िया से न्यूट्रिएंट्स का सरप्लस हो गया, जिसकी वजह से आपको ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर इसी का ये दूसरा केस हो गया, जिसमें आपका ये था, इस वाले केस में ये वाला केस किधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा भाई। तो ये सॉरी वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, क्या होगा फिर
सॉरी मैं गलत बना दिया मैंने, इधर। तो ये उल्टा केस हो गया, ये हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि फ्लो इस तरफ का है। फ्लो इस तरफ की वजह से क्या होगा, जो और वो जो होंगे न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स वो और नीचे चले जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डाउन वेलिंग होगी। तो आपके लिए सुटेबल कौन सी कंडीशन है, कौन सी ज्यादा बेटर है, कहां पर आपकी अपवेलिंग हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं आपको बताऊं, आपको वो दे देगा 4 कोस्ट, ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। सर जैसे कि गल्फ स्ट्रीम फ्लो कर रही है, तो सर उसमें अपवेलिंग मतलब होगा कि डाउनवेलिंग होगा सर? यू टेल। सर अपवेलिंग हवा। अगर यूएसए ये है और गल्फ स्ट्रीम ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है ना, गल्फ स्ट्रीम ये है, ये यूएसए है, मैक्सिको के नीचे, और ये है द गल्फ स्ट्रीम है। तो अगर ये इस तरीके से जा रहा है फ्लो, है ना, ये पहली बात तो ये वो अलग चीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम विंड की बात कर रहे हैं, है ना, ये अपने में एक करंट है ना। तो वहां पर हम अपवेलिंग डाउन वेलिंग के बारे में नहीं बोल सकते कुछ। हम ये बोल सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम आपका न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट होती है। ये जो वाटर्स आपके वार्म करंट जाते हैं, ठीक है ना, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं आपके, ये आपके न्यूट्रिएंट्स डिपेंडेंट होते हैं। वहीं आपके जो कैनरी करंट है जो इधर से आ रहा है, दैट इज न्यूट्रिएंट, ये नीचे से लेके आते हैं न्यूट्रिएंट्स। लेकिन सर जितने भी ये करंट्स बन रहे हैं वो तो विंड के फ्लो की वजह से ही तो बन रहे हैं। नहीं, थर्मोइलेक्ट्रिक सर्कुलेशन है, थर्मोइलेक्ट्रिक विंड का प्ले है, बट व्हाट यू कॉल इट, इट इज कॉल्ड इट थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, इट इज नॉट द इतने बड़े करंट को सिर्फ विंड ड्रिवन करेगी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज अ थर्मोहलाइन, अदर फैक्टर्स आर आल्सो प्लेइंग, ग्रेविटी इज आल्सो प्लेइंग, कोरिलेस इफेक्ट इज देयर, you have temperature, salinity, each and everything is playing, ठीक है ना रोल। इट इज नॉट टोटली नॉट विंड ड्रिवन। नहीं यहाँ पर, हाँ बताओ। Sir, upwelling and downwelling only depends upon the Ekman flow only. ठीक है, नहीं क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं ये बता रहा था क्वेश्चन आपका क्या कैसे है। क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं, वो कोस्ट दे देते हैं 4 इस तरह की कंडीशंस। तो आप देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, नदर्न हेमिस्फीयर में अगर विंड अगर पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रही है, उस केस में आपकी अगर वेस्ट कोस्ट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वेस्ट कोस्ट की बात करो, मतलब यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है। नदर्न हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वेस्ट कोस्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू विंड इज कमिंग फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, ठीक है ना, इज इक्वल टू अपवेलिंग। इज इक्वल टू अपवेलिंग। इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको पूछे जाते हैं सर, और ये चीज आपको डायग्रामेटिक वे में पूछी जाएगी, थ्योरेटिकल वे में नहीं पूछी जाएगी। आए ऐसे क्वेश्चंस। वहीं यही वाला केस देखो ना, उल्टा हो गया ना केस। यहाँ पर हमने क्या किया, ये बस कैटेगरी चेंज कर दी, और यहाँ पर क्या हो गई, हमारी डाउनवेलिंग हो गई। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। अभी यही आप ईस्ट कोस्ट कर दोगे, यहाँ पर मैं ईस्ट कोस्ट करता हूँ, ईस्ट कोस्ट का ही मैं केस बताने लग गया था पहले। तो ईस्ट कोस्ट में क्या है, यही वाला केस है, ये वाला केस है, लेकिन ईस्ट कोस्ट कर दिया तो ये चीज याद करने वाली नहीं है, आप खुद फील कर सकते हो इस चीज को। अगर इस तरीके से जा रहा आप डायग्राम बना के खुद इमेजिन कर सकते हो, याद करने वाली चीज है ही नहीं। एक केस याद करो बस समझने के लिए, हम ज्यादा बोलते ही नहीं, ज्यादा याद करो। एक केस याद करो, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, वेस्ट कोस्ट पे हो, पोल टू इक्वेटर जा रही है विंड, अपवेलिंग हो गई। सदर्न के केस में आप देख सकते हो क्या कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस केस में आपकी डाउनवेलिंग होगी, किस केस में आपकी अपवेलिंग होगी, और क्वेश्चन यही होते हैं, और घुमा फिरा के अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अदर वेज जो होते हैं अपवेलिंग के,
वो एक तो अभी हम लोग ने देख लिया, एक तो कोस्टल अपवेलिंग हो गई, अभी हम लोग ने कितने अच्छे समझा उसको। एक हम लोग ने समझा आपका ये इक्वेटोरियल अपवेलिंग हो गई है, ठीक है, इसमें विंड्स आ रही हैं और आपके डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्स कर रही हैं पानी को, वो हो रहा है, उसकी वजह से आपकी अपवेलिंग हो रही है कोस्टल एरियाज में। देन आपकी और भी रीजंस हैं। एक तो पहली बात ऑफ शोर जाने वाली विंड्स, ऑन शोर से ऑफ शोर की तरफ जो उनको बोला जाता है ऑफ शोर विंड्स की वजह से भी आपकी होती है। तो विंड ऐसे नहीं ब्लो कर रही, पिछले केस में ऐसे आ रही थी, लेकिन अब ऐसे नहीं, आपकी कॉन्टिनेंट साइड से आ रही है, तो कि आपका इफेक्ट कर सकती हैं। एज वेल एज आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इसकी वजह से भी आपका एक टेबल माउंट आ गया नियर द कोस्ट, जैसे ये होते नहीं है वैसे नियर द कोस्टल एरियाज में, लेकिन स्टिल आपका टेबल माउंट डीप ओशन में आ गया, तो वहां पर आप कुछ लोकल लेवल की अपवेलिंग देख सकते हैं इस वजह से, ठीक है ना। मिडल ऑफ द ओशन, जो कि बहुत बेनिफिट है, मिडल ऑफ द ओशन होती ही नहीं है प्रोडक्टिविटी अच्छी। प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तो कोस्टल एरियाज में, या तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है इक्वेटोरियल एरियाज में, मिडल ऑफ द ओशन नहीं मिलेगी। इन केसेस में आपको मिल सकती है, ठीक है ना। कभी कभी आपके अपवेलिंग हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलती है, जो कि बहुत रेयर होती है। जब भी आपकी कभी कभी पिक्नोक्लाइन आपकी नहीं बनती है, तो पिक्नोक्लाइन नहीं बनेगी तो क्या होगा, आपको जो डीप वाटर है और आपका जो मिक्स जोन है वो आप कनेक्ट हो गए, तो कनेक्ट होने की वजह से पिक्नोक्लाइन थर्मोक्लाइंस हेलोक्लाइन ये एज अ बैरियर वर्क करती है ना। तो उन केसेस में भी आपकी अपवेलिंग हो सकती है, जैसे इस केस में दिखाया गया। ये कुछ और केसेस हो गए अपवेलिंग के, लेकिन दीज आर द मेजर वंस, ठीक है। तो यही चीज आपकी दी हुई है, समझे आप आपको बात को? हेलो, यस सर। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग यहां से लेके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। बड़ा चैप्टर है ये वाला, थोड़ा समझने वाला चैप्टर है।